Hello everyone. My name is Rohit Ranjan. I am a teacher, a mentor, an educator, and the most important part is I am also a parent. This video I am making not for a teacher, not for a mentor, especially for the parent also. There's so many confusion going on, so many queries are coming in front of me related to how CBSE is going to conduct the board examination in the coming years. So related to that part, already CBSE has given few documentation. In today video, I would like to disclose the entire information that CBSE has, even the education department has already given to us. And we are going to know and we are going to learn how the board examination will be conducted and what will be the set of subjects that will be given to the students of class 9 to class 12. So this specific video is only dedicated to for the students of basically class 9 to 12. So without wasting time, I would like to start my presentation. So this video is related to the National Curriculum Framework for School Education 2023. This framework has been given by the Department of Education after getting the draft of National Education Policy. Whatever the information that National Education Policy has given to us, according to that, the framework has been designed, and on that framework, each and every school got the guidelines on which the content will be issued, the content will be executed as per the direction which we are going to get in this framework. Uh, okay, since this video is dedicated for the parents also, so I will try my best to utilize the entire session in bilingual format so that not the educators, even the parents can also get the benefit from the video. So ये वीडियो बेसिकली मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ उन लोगों के लिए, उन पेरेंट्स के लिए, उन टीचर्स के लिए जिनके बीच में आज भी कंफ्यूजन है कि 9th और 10th 11th 12th के सब्जेक्ट्स, सेट ऑफ सब्जेक्ट्स क्या होंगे और उनके बोर्ड एग्जामिनेशन किस बेसिस पे कंडक्टेड होंगे। वट एवर द इंफॉर्मेशन, जो भी इंफॉर्मेशन हम इस वीडियो के तहत, इस प्रेजेंटेशन के तहत आपको बताने जा रहे हैं, नन ऑफ द कंटेंट इज क्रिएटेड बाय माई सेल्फ। उसमें कोई भी कंटेंट मेरे द्वारा क्रिएटेड नहीं है। ऑल द इंफॉर्मेशन आई गॉट इट फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन। तो फ्रेमवर्क जो बना है उस डॉक्यूमेंटेशन से ही मैंने ये सारे कंटेंट को निकाला है। तो इसका एक भी वर्ड हाइपोथेटिकल नहीं मिलेगा आपसे। ईच एंड एवरी पार्ट इज द फैक्ट, एंड ऑन दैट फैक्ट आई वुड लाइक टू प्रेजेंट द एंटायर कंटेंट। लेट्स बिगिन। When we are talking about national curriculum framework, it starts from national education policy. So we must know what is the vision of our national education policy. Why national education policy is now so much famous, and on that vision, why national curriculum framework has been conducted. आखिर ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है क्या, क्यों है, और उसने क्या चेंजेस किया है जिसके कारण एक नए करिकुलम फ्रेमवर्क को बनाने की जरूरत पड़ी। आप यहाँ पे देख सकते हैं द पॉलिसी, द विजन ऑफ दिस, द पॉलिसी इज रिटन हियर that this national education policy envisions an education system rooted in Indian ethos that contributes directly to transforming India, that is Bharat, substantively into an equitable and vibrant knowledge society by providing high quality education to all and thereby making India a global knowledge superpower. Basically, हमारे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का जो विजन है वो इनडायरेक्टली यही है कि आपको और आपके बच्चों के ऐसे एजुकेशन से रूबरू कराया जाए जो मार्केट के कॉम्पिटेंसी के बेसिस पे हो, जो उसे मार्केट में सरवाइव करने में मदद करे। यहाँ बच्चा ऐसा नहीं है कि हमारे पास पहले जो एजुकेशन सिस्टम था वो तो उसमें बहुत ज्यादा खराबियां थी, लेकिन अकॉर्डिंग टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अब हमें अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल मार्केट थोड़ा सा चेंजेस लाने की जरूरत है। वो चेंजेस बहुत डिटेल में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में बताया गया है। उसका ड्राफ्टिंग आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं, अगर मौका मिला तो मैं इस वीडियो के साथ में अटैच कर दूंगा।
और उस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के ड्राफ्टिंग के बेसिस पे एक करिकुलम को फ्रेमवर्क किया गया है, एक करिकुलम को बनाया गया है, जिसके बेसिस पे भी पता चलता है कि आखिर कौन कौन सा सब्जेक्ट्स है जो कि बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है और कैसे इसको पढ़ना है। ये फ्रेमवर्क आप जरूर एक बार इसके इस फाइल के थ्रू जाइएगा। अगर आपको मिल जाता तो अच्छी बात है, अदरवाइज हम इस लिंक हम अपने इस वीडियो के साथ डाल देंगे। ऑलमोस्ट 628 पेजेस का ये फ्रेमवर्क है। इसमें डिटेलिंग के साथ कि सब्जेक्ट्स क्या हो सकते हैं, व्हाट आर द सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट्स के एम्स क्या है, यानी सब्जेक्ट क्यों पढ़ाया जा रहा है, वो सब्जेक्ट पढ़ने के बाद बच्चा का लर्निंग आउटकम क्या होगा, यानी इस सब्जेक्ट का बेनिफिट बच्चे को क्या मिलने वाला है, और उस इवन द टाइम फ्रेमवर्क कितने घंटों में इसे कंप्लीट करना है। एज द एजुकेटर मोस्ट ऑफ द टीचर एंड द एडमिनिस्ट्रेटर आर नोइंग, बट बीइंग द पेरेंट यू ऑल्सो हैव टू बी अवेयर, आपको भी इसके लिए अवेयरनेस रखना पड़ेगा। क्योंकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने जब अपना कॉन्सेप्ट लॉन्च किया था और उसने जहाँ पे अपने हॉलिस्टिक अप्रोच के बारे में बात की थी, उस हॉलिस्टिक अप्रोच का में एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट, एक इम्पॉर्टेंट स्टेक होल्डर हमारे पेरेंट्स। बीइंग द पेरेंट, अभी आपकी जिम्मेवारी बनती है कि आपको हर चीज का अवेयरनेस रखना हो, क्योंकि आपके बच्चे का मार्क्स आपके व्यवहार के ऊपर भी निर्भर करता है। आपको जो आज तक एक पेरेंट इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हो रहा था, आज के डेट में आने वाले समय में उन्हें डायरेक्टली इन्वॉल्व होना होगा। So let's move ahead. So this is the basically vision of the policy. Now, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, ये फ्रेमवर्क नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से अ, लिया गया है, उसके कॉन्सेप्ट को लेके इस फ्रेमवर्क का गठन किया गया है। These are the few important points that is related to the national curriculum framework. फास्टली हम इस बात को कंटेंट कंप्लीट करना चाहेंगे, क्योंकि मेरा मेन फोकस है क्लास 9 to 12 के सब्जेक्ट्स के बारे में डिस्कस करना। सो क्योंकि ये जानना भी आपको जरूरी है, अदरवाइज जो सब्जेक्ट्स तक हम पहुंचेंगे उसके इम्पोर्टेंस को आप समझ नहीं पाएंगे। So the NCF brings to life the aims and commitments of the NEP. What are the aims and commitments of the National Education Policy? जानने की कोशिश करते हैं। The first is the aim of education. यानी इसमें कोशिश ये की गई है, एजुकेशन को पूरी तरह से फोकस किया गया है। कोशिश ये की गई है कि हर एक कैटेगरी, हर एक क्लास के लोगों को एजुकेशन हर एक रूप से मिल सके। वो कितने वैरायटीज से उसमें चेंजेस की गई, हम लोग उसको डिटेल में आगे जाके जानने की कोशिश करेंगे। पहले उसके ये बात को समझते हैं कि उनका एम क्या है। सेकंड थिंग, दिस इंक्लूड्स द फुल रेंज ऑफ ह्यूमन कैपेसिटीज, वैल्यूज एंड डिस्पोजिशंस that are aimed to be developed in school education. Pedagogy, practices, and culture must work in tandem to work these and move away from an overemphasis on memorization. ये बात कई बार आपको यहाँ पे मिलेगी कि मेमोराइजेशन की ओवर एम्फेसिस, यानी चीजों को रट रट्टा मारने की प्रवृत्ति को दूर करने की कोशिश की गई है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत, और इसी बेसिस पे नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क को तैयार किया गया है कि बच्चों में रटने से ज्यादा कुछ प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करने की प्रॉपर्टी उनके अंदर इनकल्टिवेट करनी चाहिए। तीसरी बात, ये आज के डेट में बच्चा बच्चा जानता है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो वर्ड स्टार्ट होता है, किसी को कुछ समझ में आया ना आए, उन्हें ये जरूर पता है कि ये करिकुलर का जो पेडागोगिकल स्ट्रक्चर है वो 5+3+3+4 के फॉर्म में। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब ये है कि जो स्कूलिंग होगा आपका, वो पहला 5 साल एक पार्टिकुलर फ्रेमवर्क के लिए होगा, अगला 3 साल दूसरे फ्रेमवर्क से काम करेगा, अगला 3 साल वो अगले फ्रेमवर्क से काम करेगा, लास्ट 4 जो होगा वो आपका फाइनलाइजेशन पोजीशन पे आएगा। पहला 5 साल, इसको हम लोग डिटेल में और आगे जाके देखेंगे। पहला 5 साल में आपका आंगनबाड़ी से लेके क्लास 2 तक के बच्चों को इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट जो 3 है वो क्लास 3, 4, 5 को इंक्लूड किया गया है। देन नेक्स्ट जो अगला 3 स्टेज है वो क्लास 6, 7, 8 पे है, और नेक्स्ट 4 जो है वो क्लास 9 से लेके 12 तक। अभी जो मेरा करेंट स्ट्रक्चर जो हम लोग फॉलो करते हैं उसमें 9, 10 एक सेकेंडरी के तहत जाना जाता है, और 11, 12 सीनियर सेकेंडरी के तहत। बट नाउ इट विल बी चेंज, इट इज इंटीग्रेटिंग हॉलिस्टिक। हॉलिस्टिक शब्द का इस्तेमाल कई बार हो रहा है, थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको बताया इस वर्ड को। हॉलिस्टिक का इस्तेमाल क्यों हो रहा है? क्योंकि
यहाँ पे कोशिश ये की जा रही है कि जितना वैल्यू आपके कोर सब्जेक्ट्स लाइक मैथ साइंस को दिया जा रहा है, उतना ही वैल्यू आपके को करिकुलर एक्टिविटीज को भी मिलना चाहिए। चाहे वो स्पोर्ट्स हो, आर्ट्स है, म्यूजिक है, तो सारे कंटेंट का वेटेज ऑलमोस्ट सेम है, पार्टिसिपेशन सेम है। जितना एक टीचर का पार्टिसिपेशन है, वही पार्टिसिपेशन एक पेरेंट्स का भी है, वही पार्टिसिपेशन उस बच्चे के फ्रेंड के थ्रू भी, उस बच्चे का खुद के प्रति भी। That details you are going to know when you are going to learn each and every part of national education policy. नेक्स्ट पॉइंट इज इट कन्फ्रॉन्ट्स, वो लड़ने की कोशिश कर रहा है किससे, एड्रेस रियल चैलेंजेस फेसिंग अवर कंट्री। अकॉर्डिंग टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, हमारे कंट्री का जो रियल चैलेंज है वो है नोटेबली दैट ऑफ लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, रोट मेमोराइजेशन, नैरो गोल्स एंड इनएडिक्वेट सोर्सेज। दैट मीन्स हमें आज भी जो रटने की रोट मेमोराइजेशन, रटने की क्षमता, रटने के कारण ही लर्निंग एक्सप्लोर करना, इनोवेशन कम हो पा रहा है। इस कारण से इस चीज से लड़ने की कोशिश की जा रही है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के लिए। It is deeply rooted in India. The next point is it is deeply rooted in India. This is in content and learning of languages, in the pedagogical approach, including tools and resources. Most importantly, in the philosophical basis, in the aims and in the epistemic approach. That means यहाँ पे सीखने की प्रवृत्ति पे ज्यादा ध्यान दी जा रही है। हमारे पास आज के डेट में स्कूलिंग सिस्टम में द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज योर वे ऑफ कम्युनिकेशन। आपका लैंग्वेज मैटर करता है। इफ यू आर नॉट गुड इन इंग्लिश, दैट मीन्स यू आर लैकिंग समथिंग। थोड़ा सा ये इम्पोर्टेंट भी है ग्लोबल मार्केट में स्टे करने के लिए, बट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लैंग्वेज पे ज़्यादा फोकस नहीं किया है। अकॉर्डिंग टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, यहाँ बच्चों को सिखाने के लिए रीजनल लैंग्वेजेस का भी इस्तेमाल करने के लिए एक गाइडलाइन मिला हुआ है। तो इसमें इंग्लिश के लर्निंग पे ज़्यादा फोकस नहीं करके फोकस इस बात पे है कि बच्चा सीख जाए। तो दिस इज द न्यू चेंजेस दैट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इज ट्राइंग टू कल्टिवेट थ्रू द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। नाउ थोड़ी देर पहले इसकी बात मैं आपसे कर रहा था कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में अगर किसी से भी पूछा जाए तो कुछ पता है ना पता हो, ये जरूर पता होता है कि वो 5+3+3+4 के फॉर्मेट में होता है ये। और मेरे ख्याल से आप सारे लोगों को जो भी अवेयर होंगे, पेरेंट्स टीचर्स तो जानते ही जानते हैं, स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर को फुल्ली अच्छे से पता है। बीइंग द पेरेंट, ये भी आपको मेरे ख्याल से पता होगा कि ये फ्रेमवर्क 5+3+3+4 के बेसिस पे डिजाइन किया गया है, जो बेसिकली बच्चे के क्लास बच्चे के थर्ड ईयर एज से लेके 18 ईयर एज के बीच के लिए वर्क करते हैं। पहला 5 साल जो होता है, जहाँ पे बच्चा यानी एज एट द एज ऑफ 3 द स्टूडेंट विल द स्टूडेंट मस्ट बी the student must get the basic preschool education or the Anganwadi at the age of 3. From this part, यानी पहला 3 साल, almost most of the school are still having uh, this preschool concept, which basically many of the school must be having nursery, junior KG, senior KG, or someone may be having nursery, LKG and UKG. अब अभी तक ये गाइडलाइन में नहीं था, स्कूल्स तो ये दे रहे थे लेकिन ये मैंडेट नहीं था। नाउ दीज आर द मैंडेट पार्ट, दैट मीन प्री स्कूल्स आर मैंडेटरी, देन द नेक्स्ट 2 years will be of the primary education that includes grade 1 and grade 2, and then next we are having preparatory stage. The first stage is basically known as foundational stage. दूसरा stage तो next 3 year का होता है, जो ग्रेड 3 से ग्रेड 5 के बच्चों के लिए है। उसके लिए गाइडलाइन यही है कि बच्चा ग्रेड 3 से ग्रेड 5 में जो एज कवरिंग एज है वो 8 से 11 साल के बीच में होना चाहिए। मिडिल स्टेज पे बच्चे जो ग्रेड 6 से ग्रेड 8 के बीच के बच्चे होंगे, उनका जो कवरिंग एज होगा वो 11 से 14 ईयर्स के बीच में होना चाहिए। And secondary stage, I already told you that now we are having one secondary stage. We are not going to get any senior secondary stage. This secondary stage includes the grade from 9 to 12, and they are in 2 phases.
first phase is class 9 and 10 and the next phase is 11 and 12. और इस एज फैक्टर जो है वो 14 साल से 18 साल, ये दैट मीन्स मिनिमम ईयर क्लास 9 में आने के लिए 14 साल है और मैक्सिमम ईयर 12 पास करने के लिए आपके पास 18 साल है। अब आते हैं हम लोग उस स्ट्रक्चर पे जिसके लिए मैंने इस वीडियो को क्रिएट करने की कोशिश की। विजन ऑफ सोसाइटी अकॉर्डिंग टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जो भी उसका विजन है बहुत डिटेल और बहुत ही फ्रूटफुल विजन है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का, वो बनता है, वो कंप्लीट होता है कब, जब आपका विजन एजुकेशन के प्रति कंप्लीट परफेक्ट रहेगा। किसी भी चीज का इम्प्लीमेंटेशन परफेक्शन तभी आता है जब उसका डिसेंट्रलाइजेशन परफेक्टली और एग्जीक्यूशन परफेक्टली। नाउ दिस विजन विल बी decentralized as the as the vision and purpose of education according to the society. That means that whatever the society is going to get, that is directly proportional to the education that we are going to provide to our kids, to the entire youth of our country. And वो education बेसिक स्ट्रक्चर स्टार्ट होता है हमारे स्कूल एजुकेशन से। तो इस स्कूल एजुकेशन का फ्रेमवर्क नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के नाम से आता है और इस फ्रेमवर्क के अंदर में आपको मिलेगा डिजायरेबल वैल्यूज, डिस्पोजिशंस, कैपेसिटीज एंड नॉलेज। कैसे मिलेगा? वो मिलेगा इन करिकुलर एरियाज पे। अब यहाँ से हमारी बात स्टार्ट होती है, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए। What are the curricular areas that are important according to National Curriculum Framework? They are language, mathematics, science, social science, arts, interdisciplinary areas, physical education, and no doubt vocational education. ये सारे सब्जेक्ट 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सारे के सारे 8 सब्जेक्ट्स को एक ही कैटेगरी में रखा गया है। यानी ये 8 सब्जेक्ट एक ही लेवल के हैं, एक बराबर के हैं। जितना वैल्यू लैंग्वेज का है उतना ही वैल्यू फिजिकल एजुकेशन का है, उतना ही वैल्यू वोकेशनल एजुकेशन का भी है। और ये सारे सब्जेक्ट का डिटेलिंग आपको इस फ्रेमवर्क में मिल जाएगा, जहाँ एम से लेकर उसके लर्निंग आउटकम तक डिटेल बताएगा। आप चाहे तो फ्रेमवर्क के थ्रू जा सकते हैं। फिलहाल हम सिर्फ सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट विद द सेकेंडरी स्टेज। बेसिकली सेकेंडरी स्टेज 4 साल का होने वाला है, जो कि 9 10th और 11 12 4 साल कंप्लीट करेगा। द सेकेंडरी स्टेज विल कंप्राइज ऑफ 4 years of multidisciplinary study building of the subject oriented pedagogical and curricular style of the middle stage but with greater depth। अब देखिए यहाँ आपको दो वर्ड हमेशा मिलने वाला है आने वाले समय में, डेप्थ एंड ब्रेथ। जब भी बात ब्रेथ की होगी दैट इज द मैंडेटरी पार्ट, और जब भी बात डेप्थ की होगी दैट इज द ऑप्शनल पार्ट। दैट मीन्स द सब्जेक्ट दैट विल बी ऑप्टेड बाय द स्टूडेंट एट अ पर्टिकुलर स्टेज। तो हम लोग देखेंगे कभी ऐसा होगा। दैट डेप्थ, that means now the students has opted a particular subject, the student has to go through deeply through that subject. But when curriculum is providing you the mandatory subject, that mandatory subjects we have to learn everything but with a particular breadth. So we will see whenever breadth and depth we are going to get as the jargon, but with greater depth, greater critical thinking, greater attention to the life aspirations, and greater flexibility. And student choice of subjects. Choices are very much important now. In particular, students would continue to have options of exiting after class 10 and re-entering in the next phase to pursue vocational or any other course available in grade 11 and 12, including atom. That means 10th के बाद भी बच्चों को अगर चाहे तो वहां से निकल के आप एक नए वोकेशनल पार्ट से सब्जेक्ट को ऑप्ट कर सकते हैं और अपने कैरियर को आगे बढ़ा सकते हैं। अदरवाइज आप चाहे तो जो 9th फॉर्मेट से लेके चल रहे थे आप उसको कंटिन्यू करते हुए 12 तक लेके जा सकते हैं। अब आते फॉर्मेट क्या है। The implications of the above two policy directions for curriculum design of the secondary stage are following. कुछ पॉइंट्स आने वाले हैं और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। इट कंसिस्ट ऑफ 4 years, ये 4 साल का होगा। मल्टीडिसिप्लिनरी स्टडी होगा। हम लोगों ने देखा थोड़ी देर पहले वो 8 सब्जेक्ट, वो 8 मिला के एक मल्टीडिसिप्लिनरी स्टडी बनाता है।
during which students will offer a range of courses including essential courses which all students must take। इसमें कुछ essential courses होंगे तो सारे स्टूडेंट को करना ही करना है, जहाँ पे ब्रेथ स्टडी मिलेगी। चॉइस बेस्ड कोर्सेज विच ईच स्टूडेंट में सेलेक्ट, कुछ सब्जेक्ट्स मिलेंगे जो जिसमें से कुछ सब्जेक्ट स्टूडेंट चाहे तो सेलेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे उन्हें डीपली पढ़ना है, डेप्थ होगा। vocational education, arts, sports, which will be an integral part of the curriculum। Now vocational education, arts and sports ये तीनों important है, आपको ये तीनों अपने मेन कोर सब्जेक्ट के साथ इंक्लूड करना ही है। देखते हैं उसमें और क्या क्या पार्ट हमें मिलने वाले हैं। द करेंट प्रैक्टिस ऑफ स्ट्रीमिंग इनटू साइंस आर्ट्स। हाँ, अब हम लोग जो बातें करते हैं कि बच्चा साइंस स्ट्रीम लिया, आर्ट्स लिया, ह्यूमैनिटीज लिया है या कॉमर्स लिया है, ये शब्द अब नहीं रहे, क्योंकि अब यहाँ पे कोई स्ट्रीम नहीं है। बच्चा अपनी मर्जी से किसी भी कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स को ले सकता है। अनफॉर्चुनेट है ये थोड़ा सा, क्योंकि कुछ कॉम्बिनेशंस ऐसे हैं जिसको जस्टिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। अगर बच्चा बायो के साथ अकाउंटेंसी और हिस्ट्री लेना चाहता है तो शायद यहाँ पे सोचने वाली बात ये हो जाएगी कि आखिर उसका कैरियर किस बेसिस पे आगे बढ़ सकता है। बट चॉइसेस आर सो लिबरल, वो आप चाहे तो उस बेसिस पे अपने आप को मोल्ड कर सकते हैं। देखते हैं हम लोग और क्या क्या चॉइसेस मिल सकते हैं। enables both breadth through engagement with a variety of courses across stream and depth in areas chosen। That means जो आपको मैंडेट मिला है वहाँ पे आपको बाय ब्रेथ पढ़ना ही पढ़ना है, और जितना कंटेंट है आपको उतने रेंज तक आपको जाना ही जाता है। और जहाँ बात होती है कि स्टूडेंट के चॉइस के ऊपर, अगर स्टूडेंट चूज करता है कि ये सब्जेक्ट उन्हें पढ़ना है तो उसको डीपली पढ़ना पड़ेगा। ग्रेटर ब्रेथ विल बी इनेबल। देखिए बार बार मैंने आपको बताया है कि ये वर्ड आपको, ये जार्गन आपको बार बार मिलेगा। ग्रेटर ब्रेथ विल बी इनेबल्ड बाय द एसेंशियल कोर्सेज दैट आर ऑल स्टूडेंट्स विल टेक, एंड व्हाइल ग्रेटर डेप्थ, ब्रेथ जहाँ पे एसेंशियलिटी होगा कोर्स का, एंड डेप्थ विल बी इनेबल्ड थ्रू कोर्सेज बेस्ड ऑन द स्टूडेंट चॉइस। Students will receive greater attention to their personal and career aspiration as they ready themselves for work or हायर एजुकेशन। यहाँ पे कोशिश ये की जा रही है कि बच्चे को इस लेवल तक तैयार किया जा सके ताकि वो अपने हायर एजुकेशन लेना चाहे तो उस पर भी पे वो मोटिवेट हो सके। अगर वो वहाँ से अपना एक एंटरप्रेन्योरशिप, अपना कुछ काम भी स्टार्ट करना चाहता है तो वहाँ से वो उसके लिए भी उस प्रॉपर गाइडलाइन स्कूल एजुकेशन से ही मिल सके। द सेकेंडरी स्टेज विल बी डिवाइडेड इनटू टू फेज। सेकेंडरी स्टेज दो फेज में बटा हुआ है, थोड़ी देर पहले भी हमने आपको बताया था। पहला फेज आपका 9-10 का होगा, दूसरा 11 एंड 12 का होगा। फर्स्ट फेज जो है वो ब्रॉड करिकुलर एरिया, जिसमें साइंस, सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज जैसे सब्जेक्ट होंगे, विल बी ऑफर्ड इन क्लास 9 एंड 10 टू इनेबल ब्रेथ। बार बार इसी शब्द को आपको मिलेगा आपको यहाँ पे। 9-10 में ब्रेथ बेसिस पे है, दैट मीन्स इसेंशियल है, आपको पढ़ना ही पढ़ना है, वहाँ पे आपके पास चॉइसेस नहीं है। Learning standards are defined for this phase, and it is expected that all students attain these learning standards। कुछ लर्निंग कंटेंट है, लर्निंग स्टैंडर्ड है, कुछ प्रोटोकॉल्स है जो स्टूडेंट्स को फॉलो करना है, कुछ रूब्रिक्स है जो ऑन द बेसिस ऑफ दैट स्टूडेंट्स विल गेट द प्रॉपर सर्टिफिकेट। ओके। सेकंड इज डिसिप्लिन, यानी ये 11-12 की बात हो रही है। डिसिप्लिन यहाँ स्ट्रीम हटा के डिसिप्लिन के बारे में बात की जा रही है। वो कौन कौन से हो सकते हैं? हिस्ट्री हो सकता है, फिजिक्स हो सकता है, लैंग्वेज हो सकता है, सो मेनी वैरायटीज हम लोग एक टेबलर फॉर्मेट में देखने जा रहे हैं। Within each curricular area will be offered in grade 11 and 12 to enable depth। ओके, 11 एंड 12 में हमें पार्टिकुलर करिकुलर एरिया के में कई सब्जेक्ट्स मिलने वाले हैं। थोड़ी देर में देखते हैं क्या क्या मिलने वाले हैं। स्टूडेंट्स हैव अ चॉइस इन सेलेक्टिंग स्पेसिफिक एरियाज एंड डिसिप्लिन। वो स्टूडेंट के चॉइस पे कि कौन सा एरिया, कौन सा डिसिप्लिन चूज कर सकता है। दे मेक they make these choices based on their interest, अपने इंटरेस्ट के बेसिस पे, and their future plans either in the world of work or in higher education। आप आगे जाके वो क्या काम करना चाहते हैं, क्या आगे पढ़ना चाहते हैं, उसके बेसिस पे वो अपना चॉइस रखेंगे after their school completion। And there are no common learning standards for this phase, while each of the disciplines would have its specific competency and learning outcomes। जरूरी नहीं है कि हर बच्चा एक ही कॉम्बिनेशन के सब्जेक्ट को पढ़ेगा, हर का अपना स्पेशलाइजेशन हो सकता है और हर सब्जेक्ट का अपना स्पेसिफिक कॉम्पिटेंसीज है और उसका अपना एक लर्निंग आउटकम। अब आते हैं बात ग्रेड 9 एंड 10 के बारे में। 9 एंड 10, अब यहाँ से इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट होता है।
9 एंड 10 अगर बच्चा पढ़ता है तो क्लास 9 में आने के बाद क्लास 10 पास होने के लिए बच्चे को टोटल 16 इसेंशियल कोर्सेज मिलेंगे। 16 इसेंशियल कोर्सेज जो बच्चे को क्लास 9 एंड 10 में कंप्लीट करने हैं। एंड दीज आइदर करिकुलर एरिया, जो कि या तो ह्यूमैनिटीज से हो सकता है, मैथ से हो सकता है, कंप्यूटिंग से हो सकता है, वोकेशनल एजुकेशन से हो सकता है, फिजिकल एजुकेशन, आर्ट, सोशल साइंस, साइंस। हम थोड़ी देर पहले भी आपको ये चार्ट दिखाए थे, इसमें हमने आपको बताया था कि ये जो सब्जेक्ट्स है, एक ह्यूमैनिटीज मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग 2, वोकेशनल एजुकेशन 3, फिजिकल एजुकेशन 4, आर्ट्स इज 5th वन, सोशल साइंस 6th वन, साइंस इज 7th वन एंड इंटरडिसिप्लिनरी इज द 8th वन। ये 8 फॉर्मेट आपको पढ़ना ही पढ़ना है। दीज आर द एसेंशियल कोर्सेज दैट यू हैव टू डू, और ब्रेथ में पढ़ना है। ग्रेड 9 विल फॉलो, ग्रेड 9 एंड 10 विल फॉलो एन एनुअल स्ट्रक्चर। अब एग्जामिनेशन एनुअल स्ट्रक्चर का होगा। व्हाट डज इट मीन बाय एनुअल स्ट्रक्चर? अ सेमेस्टर स्ट्रक्चर इन दीज क्लासेस इज पॉसिबल। अब यहाँ से ध्यान से समझिएगा। अ सेमेस्टर स्ट्रक्चर इन दीज classes is possible to construct but is unnecessary since all students will do all the essential courses। क्योंकि यहाँ पे सारे बच्चों को एक ही सब्जेक्ट पढ़ना है और इसमें कोई चॉइसेस नहीं है, तो ये एनुअल स्ट्रक्चर हो सकता है कि इसको सेमेस्टर में कन्वर्ट करने की कोशिश की जा सकती है, जहाँ पे हर 6 महीने पे एग्जाम होगा, लेकिन जरूरत नहीं है क्योंकि हर बच्चा एक ही सब्जेक्ट पढ़ रहा है। तो वो एनुअल हर साल के अंत में, यानी 9th के एंड में और 10th के एंड में आपको एग्जामिनेशन देना है। और ये 2 साल में आपको 16 सब्जेक्ट्स पढ़ने। 16 कैसे हो गया? ये आपको 8 यहाँ पे कैटेगरीज दिख रही हैं। इन 8 कैटेगरीज में हर कैटेगरी में आपको 2 सब्जेक्ट्स, 2 इसेंशियल कोर्सेज मिलेंगे। यानी ह्यूमैनिटीज में 2, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग में 2, प्रोफेशनल में 2, फिजिकल एजुकेशन में 2, आर्ट्स में 2, सोशल साइंस में 2, साइंस में 2 और इंटरडिसिप्लिनरी एरियाज में 2। यानी ऐसा नहीं आप कर सकते कि मैं मैथ्स पढ़ूंगा तो ह्यूमैनिटीज नहीं पढ़ूंगा या साइंस नहीं पढ़ सकता हूँ। आपको यहाँ पे सारे पार्ट्स में दो दो कोर्सेज है एसेंशियल जो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। और क्लास 10 के फाइनल एग्जाम से पहले, यानी 9th स्टार्टिंग से लेके 10th के लास्ट से पहले आपको ये 16 सब्जेक्ट्स के एग्जाम पास आउट करना है। अब इस बात को समझिएगा, ये कॉलेजेस में होता है अभी। अब कई कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्सेज में भी होता है। वही सिस्टम को स्कूल में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश है। यानी फाइनल सर्टिफिकेशन आपको कब मिलेगा, ये लास्ट लाइन पे ध्यान दीजिएगा। द फाइनल सर्टिफिकेशन विल बी बेस्ड ऑन द क्यूमुलेटिव रिजल्ट ऑफ ईच ऑफ द एग्जामिनेशन। यानी जैसे जैसे आप एग्जामिनेशन पास हो रहे हैं आपका रिजल्ट जनरेट हो रहा है, और फाइनली आपको वो रिजल्ट कब मिलेगा? जब आप इस 2 साल के अंतर्गत ये 16 सब्जेक्ट को कंप्लीट करते हैं। अब इसका मतलब अभी तक तो मेरे समझ में यही आ रहा है कि ऐसा हो सकता है कि कोई बच्चा 9th के इस 16 में से 9th के फर्स्ट सेमेस्टर में 4 सब्जेक्ट कंप्लीट कर पाए। 9th के सेकंड सेमेस्टर, अगर सेमेस्टर वाइज एग्जाम होता है, एनुअल एग्जाम में हो सकता है कि वो 6 और सब्जेक्ट कंप्लीट कर जाए, तो 6 और 4 10 सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया। अब उसके पास एक बचता है नेक्स्ट 6 मोर सब्जेक्ट्स। तो वो जो कोर्स होगा, अगला जो 6 कोर्स होगा, उसको अगले 1 साल के अंदर में उसको कंप्लीट, यानी आपको टोटल 2 साल का समय मिला है। और बच्चा अपने लर्निंग पेस के अनुसार उस 16 सब्जेक्ट्स को इस 2 साल के बीच में कंप्लीट कर सकता है। ऐसा फ्लेक्सिबिलिटी मेरे समझ के अनुसार नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क क्लास 9th एंड 10th के बच्चों को दे रहा है। नाउ अबाउट 11th एंड 12th, द सेम सेट ऑफ 8 करिकुलर एरियाज विल कंटिन्यू। अब यही 8 करिकुलर एरियाज जो अब इससे पहले हम लोगों ने देखा था, याद रखिएगा उस 8 करिकुलर एरियाज में वोकेशनल एजुकेशन भी है, आर्ट्स भी है और स्पोर्ट्स भी, जो कि अभी भी क्लास 11 12 में कंटिन्यू करेगा। आप इससे महरूम नहीं हो सकते। द सेम सेट ऑफ 8 करिकुलर एरियाज विल कंटिन्यू टू बी एन ऑफर बट चॉइस बेस्ड courses will be there, will be designed based on the discipline within the curricular areas to ensure deeper and more rigorous engagement. Choice-based courses and their content will be designed on the basis of their specific nature of discipline. अब ये चॉइस बेस्ड कोर्सेज बच्चों के अपने चॉइस पे हो सकता है कि कुछ रूब्रिक्स के बेसिस पे उनको एक ऑप्शन दिया जाए, कुछ एग्जामिनेशन बेसिस पे हम चूज कर सकते हैं और उनको गाइडलाइन दे सकते हैं कि आपके लिए कौन कौन से हर एक डिसिप्लिन में कौन सा कोर्स आपके लिए बेटर होगा।
This phase of secondary stage will be divided into semesters and each choice-based course would be of a semester. ये semester basis पे ही examination होगा secondary stage के second format में. The student must complete 16 choice-based courses to complete grade 12. That means अभी भी यहाँ 16 choice-based courses आपको मिलेंगे जो 11th और 12th ये दोनों में अवेलेबल है और आपको 11 से 12 के बीच में ये 16 कोर्सेज को कंप्लीट करना है. To ensure that the students have adequate breadth, they have to choose disciplines from at least 3 curricular areas. कम से कम 3 ऐसे curricular areas है जहां से आपको सब्जेक्ट्स को चूज करना है, डिसिप्लिन को चूज करना है. To ensure depth, ये कब की बात हो रही है? ब्रेथ के बारे में. ब्रेथ हम थोड़ी देर पहले आपको बताए हैं. ब्रेथ मतलब essentiality, that is mandatory. That means to ensure that the students have adequate breadth. स्टूडेंट के पास बेसिक इसेंशियल नॉलेज है कि नहीं, तो सेट ऑफ वो 8 डिसिप्लिन में से 3 उनको चुनना है जिसमें आपको ज्यादा मतलब डेप्थ नहीं पढ़ना. जो मैंडेट पार्ट है आपको नहीं पढ़ना. एंड टू इंश्योर डेप्थ, they when they choose a discipline they have to complete 4 choice based courses in each discipline. अब उस डिसिप्लिन में आपको 4 कोर्सेज मिलेंगे. हर एक डिसिप्लिन में 4 कोर्सेज मिलेंगे जो आपको डीपली पढ़ना है. इसका मतलब क्या है? थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग, एक चार्ट देखते हैं और समझ में आएगा डिटेल. अब देखिए यहाँ आपको एक चीज दिख रहा है, curricular areas and disciplines. So these are the 8 curricular areas: humanities, social science, maths and computing, arts, vocational education, sports, interdisciplinary areas. ये 8 में से आपको ये कोई 3 पार्ट को चूज करके और हर डिसिप्लिन में से आपको 4 कोर्सेज, ये डिसिप्लिन है लैंग्वेज, लिटरेचर, फिलोसफी. दीज आर द डिसिप्लिन इनसाइड ह्यूमैनिटीज. अगर आप लैंग्वेज चूज करते हैं तो उस लैंग्वेज के अंदर में आपको 4 कोर्सेज मिलेंगे. लिटरेचर चूज करते हैं तो उस लिटरेचर के अंदर में आपको 4 कोर्सेज मिलेंगे. अगर कोई स्टूडेंट साइंस चूज करता है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, दीज 3 आर द डिसिप्लिन. फिजिक्स के अंदर में 4 कोर्सेज होंगे, केमिस्ट्री के अंदर में 4 कोर्सेज. Same way, each and every curricular areas you are going to have a particular discipline, and each and every discipline will contain 4 courses, and that will be in depth, not in breadth. उसको डीपली आपको पढ़ना है. इसमें आपको इम्पोर्टेंट पार्ट मेरे नज़र में जो है वो इस बात को समझने की है कि यहाँ पे वो वोकेशनल एजुकेशन को इम्पोर्टेंस ही उतना ही मिल रहा है जितना आपके मैथ्स एंड कंप्यूटिंग को है. जितने यहाँ आर्ट्स को उतना ही इम्पोर्टेंस मिल रहा है. ये आर्ट्स म्यूजिक, डांस, थिएटर, स्कल्पचर, पेंटिंग है. और कई इसमें कंटेंट आपको मिलेंगे और ये सारे उतना ही इम्पोर्टेंस रखते हैं जितना बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री रखता है. ये स्पोर्ट्स का पार्ट उतना ही इम्पोर्टेंस रखता है जितना कि आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी और फिलोसफी रखता है. सो दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ द एंटायर करिकुलम. NSQF, नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, ये अप्रॉक्स 2016 से ही इंट्रोड्यूस हो चुका था और ये कई स्कूल्स इसको फॉलो कर रहे हैं जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह ये ऐसे कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो बहुत फेमस अभी मार्केट में है. और कुछ स्कूल्स इसको अपने साथ इंक्लूड किए हुए से फायदा अभी के डेट में क्या होता था कि अगर बच्चे को क्लास 10th में किसी एक सब्जेक्ट में कम मार्क्स आता था तो अगर NSQF के ऑप्टेड सब्जेक्ट में उसे मार्क्स अच्छा आता है तो वो सब्जेक्ट मार्क्स उस कम स्कोरिंग सब्जेक्ट से रिप्लेस करके फाइनल उनका जो एग्रीगेट मार्किंग होता था वो बेस्ट 5 सब्जेक्ट के बेसिस पे होता. लेकिन ये सारे स्कूल इसको मैंडेट वे में अभी वर्क नहीं करते. ये सारे स्कूल में इम्प्लीमेंटेड नहीं है. Now, after this national curriculum framework, I think that now it will become mandatory to each and every school to include at least one skill-based education to their students. It will be better for schools and for the students also to include multiple varieties of school skill-based qualification. There are so many that will be our rigorous topic when I am going to discuss about skill-based education. There are so many topics on which students can get the NSQF certification. That means National Skill Qualification Framework में कई ऐसे सब्जेक्ट हैं जो स्टूडेंट चाहे तो उसको चूज कर सकता है. तो ये पूरे वीडियो का नटसेल यही है, आपको ये समझाना कि आने वाले समय में जो भी बच्चा बोर्ड का एग्जाम देगा ये 8 करिकुलर एरियाज इंपॉर्टेंट है और इनके ये डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट.
आप उसके लिए अपने आप को और अपने बच्चों को प्रिपेयर रखिए, और इसी के बेसिस पे ही आप प्रिपेयर रहिए कि आने वाले समय में बच्चा इसके सर्टिफिकेशन के बेसिस पे 10th और 12th पास हो जाता है। तो इस वीडियो को बनाने का मेरा मेन कारण यही था, ताकि आपको ये समझा सके कि ये बोर्ड एग्जाम आने वाले समय में किन सब्जेक्ट के साथ होने वाला है और कैसे होने वाला है। आशा करते हैं कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और आपको जो बेसिक इंफॉर्मेशन की जरूरत थी आपको इस वीडियो से जरूर मिला होगा। अगर और भी किसी तरह के इंफॉर्मेशन की जरूरत है, अगर हम आपको पहुंचा सकते हैं, तो काइंडली आप मेरे इस वीडियो के कमेंट लाइन में लिख सकते हैं। अगर मुझे मौका मिला तो उस पार्टिकुलर टॉपिक पे भी हम डिटेल आपको एक पार्टिकुलर वीडियो बना के आपको। तो थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी।